Sir, a stray cat has entered our meet. Hi. Hi, sir. Good afternoon. Good afternoon. What's up, people? Long time. Come. आ जाओ. Video पे आ जाओ. Sir, a traitor has, a traitor cat has, stray cat has It's entered I our meet. think. Look at the profile. Yeah, I know. I know. Stray cat. कैसे? No, I had His, it profile. different. Yeah. Wait. Profile. I didn't understand. Say it again. Just a second. I had this thing as my profile, and my name was this. Luca. Acha. So people thought you're someone else. Because Samriddhi and No. Swayam were literally as interrogating him, like, why are you a creep or something? Nice. Fun. I knew it was Sujal. Like, Yeah. आ जाओ. Video पे आ जाओ सब लोग. Long time. तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा था ना लास्ट में? You remember gravitation? Yes. मास्क क्यों लगाया तुमने? अच्छा ये वो वाला mask मास्क. is important. It's N95. It's the graphic. Why you put graphic, man? हटा दो ना उसको. So it's helpful. असली मास्क is helpful. How is this? Protects from corona. You guys are really If good. electronic corona exists, then it's helpful. एंटीवायरस होएगा ना, इससे ऐसे थोड़ी अपने कंप्यूटर And में. how is that harmful to us? How is the digital virus harmful to humans? Yeah, you're not digital. Correct. हमारा फेल हो गया यार, ये तो लॉजिक फेल हो गया भाई स्वयं. So how do you find logic in like electronic corona? How do you find logic? Exactly. True. Correct. All right, everyone. Come on video. On Camera. Aryan Rajesh. Aryan Rajesh. Yes, sir. आ जाओ. Wait. Okay. Let me set up the screen. Yeah. ठीक है. चार्ट्स निकाल लेता हूँ मैं. ठीक है. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशन, राइट? ग्रेविटेशन इज अ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस. उसका फॉर्मूला क्या है बताओ, कौन बताएगा? ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला समृद्धि कोपकर. So gravitational force. So Swayam, tell me. I also don't remember. तुम लोगों ने फ्लिपर नहीं किया क्या उसके ऊपर? सो देखो अब यहाँ से चालू हो जाता है बहुत. अगर यहाँ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम लोग तो 9th में बहुत तकलीफ होगी. अभी तो फिर भी कम सिलेबस है बट स्टिल तकलीफ होगी.
सो मेक श्योर दैट अब इसको ग्रेड 8 की तरह ना मत ट्रीट करो, बी वेरी वेरी सीरियस. 10th में और इससे ज्यादा होएगा. So make sure that whenever a chapter is done, you do not just leave it after that. You have to keep practicing. ताकि तुम्हें फॉर्मूले वगैरह बेसिकली तो याद रहे, प्लस उसके हायर लेवल के क्वेश्चंस तुम करते रहो. ठीक है. Everybody come on video. Don't leave the video. Don't leave the video without my So permission. 1 second, I'm bringing like my textbook. Waiting for you, Swam. Once you're here, Yeah, sure. don't leave the video without Yeah. my. Okay. So force का फॉर्मूला क्या होता है स्वयं? So मास्क हटाओ वहां से. Take off your mask. so 1 second, I'll just remove it. Ready? Yeah. Yeah. Okay. Come. बताओ. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? So वो भी याद नहीं. no, sir. हंसने की बात नहीं है भाई, याद नहीं है तो मतलब दुख मानो. बस क्यों याद करके आया करो यार. फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके. Oh, yeah, I remember that one. सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलो स्वयं. इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो स्वयं. कैन यू Yeah, sir. इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो ना. So I read it out. नॉट रीड इट आउट, टेल मी. So that also I don't remember. Like I'll have to इक्वल्स टू यू प्लस revise one. AT, ऐसे ये सब नहीं पता है तुमको? So which one? P equals to U plus AT नहीं पता है क्या? Everyone else put it on chat. All three equations of motion. स्वयं वैर कर, tell me. So V is equals to U plus AT, then S is equals to UT plus half AT square, and so third one. Samriddhi book का tell me. Third. So third. Yeah. So V square is equal to U square plus AT. क्या फेल हो जाओगे तुम लोग? तो फिर ऐसे कैसे होएगा? I'll have to call your parents now. अगर फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला तुम लोग को याद नहीं, इसका मतलब कर क्या रहे हो तुम? हाँ, बी सीरियस मैन. F equals to mass into acceleration. Okay. In term मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है स्वयं वर्ग? तुमको पूरे सब्जेक्ट में कौन सा फॉर्मूला आता है? कोई भी एक फॉर्मूला आता है? हाँ, बोलो. F is equals to G M upon R square. गलत फॉर्मूला. No, F is equals to G M1 into M2 upon R square. F कौन सा F है ये? क्या F है? So I just know that formula. हाँ, बट किस चीज का फॉर्मूला भाई? And also G is equals to the Gm upon R square. किस चीज का फॉर्मूला है ये? The gravity. समृद्धि गोपकर, मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो. So mv, mass into velocity. मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन होता है?
समृद्धि कोपकर. So like momentum is m into v. So like delta p upon time, that is the rate of change of momentum. So we can also write it like m is equal to v minus q upon t, which is equal to m into a. So that like momentum is equal to 4. Momentum is equal to force. So because we found like m bracket v minus u upon t, which is u minus v minus u upon t is equal to acceleration. So Why momentum is not equal to force? Na, force is equal to rate of change of momentum. Rate of change of momentum is equal to force. Huh? Aryan Rajesh, tell me now, gravity, force of gravity का क्या formula? Sir, the force of F. Wait. Sir, it is sir, is it G equal to GM by R squared or Is it, sir, is it FG? gm1 m2 upon r squared? Is it that? Force of gravitation is equal to capital G m1 m2 upon r square. इसमें Yeah, क्या so that's what I said. क्या capital G is equal to कितना? Aryan Rajesh. Sir, capital G is GMM by D अरे squared. capital G की value होती है यार, मतलब it's like Oh, sir, universal constant. Sir, universal. हाँ कितना होता है? Sir, 9.8. It's 6.67, I guess, into 10. 6.67 into 10 raised to minus 11. ओके, Yeah. यूनिट क्या होएगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. nm square. ओके, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है? आशका शाह. so can I tell? So it will be m into a is equal to gm upon r square. स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला I'm not. कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला Okay. स्मॉल जी. So like, yeah. तभी तो एम जी इज द टोटल फोर्स. ऐसे कैसे चलेगा यार तुम लोग का? इसको कम से कम इतना नोट कर लो तुम लोग, ताकि तुम लोग का एक रिफ्रेशर हो जाए. I'll keep a test on gravitation this Saturday so that you guys are ready with it. और gravitation में सारे फॉर्मूले लगेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन सब कुछ लगेगा, तो पूरा फ्लिपर कंप्लीट करके आना. Sir, I've done flipper. It's complete. There's nothing left now. That's why you remember things ना, बाकियों को याद नहीं है because they've not done things. I'll get more questions uploaded on Flipper for you. But there's a clear difference. Sujal was able to answer everything on chat. You guys have not been able to answer. Please do it on Flipper. And before doing it on Flipper, ये सारे फॉर्मूले तो याद करके रखो. Make sure you do all Flipper questions. मैं बोलूँगा टेस्ट में Flipper से पूछे फिर, ठीक है? ओके, चलो नोट हो गया हो तो बता देना. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला सुजल बताओ. Sir, it is
M1 V1 plus M2 V2 should be equal to M1 U1 plus M2 U2. Okay. Are you guys done? So one second. Class shut down. Okay. अभी वर्क डन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको फोर्स लगा के मूव करने के लिए हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है विच कम्स आउट एज वर्क डन। ओके, तो उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है जो अभी हम पढ़ने वाले। इससे तुमको पता चलेगा कितना कितना वर्क करना पड़ेगा हमको कोई टास्क करने के लिए, उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी, ठीक है, और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है इधर से उधर, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बेसिकली अगर कोई फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है और उसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में सपोज एस मूवमेंट हुआ है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, ये होएगा। ओके, ये फॉर्मूला हो गया, वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एस। नोट कर लो इसको, वेर एस, तो इसमें भी लिख देता हूं ये क्या क्या, एफ फोर्स अप्लाइड, एस is displacement in direction of F, F के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। SI यूनिट ऑफ W इज पता है, जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये सब नोट करो। डन। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है, ये फोर्स का डायरेक्शन, लेकिन मूवमेंट किधर हो रहा है, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे, यहां से लेके बॉडी यहां तक गई एस, और ये जो एंगल बना है ये थीटा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एस का डायरेक्शन है, ये एफ का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच में थीटा है। तो ऐसे केसेस में एफ इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ एस कॉस थीटा। बताया था ना मैंने, कॉस थीटा की वैल्यूज बताई है, नहीं बताया? Sir, you've told us what it is, but not the value. ओके फाइन। cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा तो cos थीटा की वैल्यू है 1 हो जाएगी, ठीक है। उनके बीच में 90 डिग्री, अगर cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, ये होता है। गॉट इट? इसका मतलब अगर फोर्स हम, तो पहले इसको नोट कर लो फिर मैं आगे बताता हूँ। So what's after cos? cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, No, in the formula. cos W थीटा, equals to- थीटा ये कोई भी एंगल है ना, थीटा, थीटा Okay. ऐसे ऐसे बनाते हैं, थीटा को ऐसे बनाओ, फिर यहाँ पे ऐसे,
थीटा का मतलब जैसे एक्स वाई हम नंबर्स के लिए यूज करते हैं, थीटा हम एंगल के लिए यूज करते हैं। ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। Okay. वेरिएबल, ठीक है, डन। So once again, write in. लिख लो। यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनके बीच का एंगल, लिख लो। Yeah. So done. ओके, ओके, लिख लिया। चलो अब केस वन इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। स्वयं वैर कर, थीटा क्या है? The angle between force and displacement. गुड। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, Yeah. ये, और अगर थीटा 0 है, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कौन से, कहाँ पे होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा? बोलो। So it would be the same direction, I guess. हाँ, तो 0 डिग्री है, इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में Yeah. फोर्स है तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होएगा, Yeah. है ना। और कॉस्ट 0 डिग्री कितना था? 1, 1. I guess. 1 था, राइट। इसका मतलब वर्क डन कितना हो जाएगा? F इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री, मतलब जी। F इंटू एस हो जाएगा, है ना, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में। करेक्ट। केस 2, Yeah. व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसमें क्या होएगा? इसमें अगर Zero. बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? I guess there will be no direction. Like. ऑफ कोर्स देयर विल बी ना भाई। 90 डिग्री यहाँ से एस और एफ के बीच में है, 90 Oh. डिग्री हो गया। Sir, upward. ठीक है, इधर लग रहा है अगर Yeah. फोर्स, या फिर इधर लग रहा है नीचे की तरफ, तो भी 90 हो गया ना, समझ रहे हो। Yeah. और डिस्प्लेसमेंट Yeah, अगर इस sir. डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो कितना हो जाएगा वर्क डन? कितना हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू F इंटू एस इंटू कॉस 90, मतलब कितना हो जाएगा? 0. 0। वेरी गुड। तो जब हम सर्कुलर मोशन पे चलते हैं और बॉडी ऐसे है, तो बॉडी किधर मूव कर रही है? बॉडी तो इधर मूव कर रही है, लेकिन उसको हम फोर्स तार से ऐसा लगा रहे हैं अंदर की तरफ, तो इनके बीच में कितना हुआ एंगल? कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ, समझ रहे हो। इसीलिए सर्कुलर मोशन में वर्क डन जो है वो 0 होता है। अगर हम उसको धागे से ऐसे खींचते हैं और धागे से खींच के घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो फोर्स तो अंदर की तरफ लग रहा है रेडियल, लेकिन मूवमेंट हो रहा है ऐसे उसके 90 डिग्री पे, इसलिए सर्कुलर मोशन पे वर्क डन इज 0। गेट इट? Yeah. कर लो। Yes, sir. डन। So once again, write in. ओके, तो अगर किसी ने अपने, सब लोग वीडियो से चलेगा, क्या हुआ भाई? So
Don't go off video without my permission. I said it. ओके अभी फॉर एग्जांपल किसी ने अपने सिर पे ऐसा कोई लोड रखा हो, तो लोड उठाने के लिए वो किधर फोर्स लगा रहा है? up, ऊपर की तरफ, up. है ना? और उसको लेके वो आगे चल रहा अगर, तो वर्क डन 0 हो गया उसको उठाने वाले फोर्स के लिए, ठीक है? Yes, sir. डन? So no, sir. तो जब हम किसी चीज पे वर्क करते हैं तो उसके पास एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो एनर्जी मूव करने का, इधर से उधर मूव करने का तरीका है वर्क कर। अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम वर्क करेंगे, तो फिर वो एनर्जी जिसके ऊपर हमने वर्क किया उस पर ट्रांसफर हो जाएगी। गेट इट? ओके, तो इसलिए एनर्जी का भी सेम क्वांटिटी है, एनर्जी भी, तो उसका भी ऐसा यूनिट है जूल। सीजीएस यूनिट क्या होता है, कोई आइडिया है? So dyne. नहीं, वो तो फोर्स का है भाई। No, that is for force. अच्छा. इसका होता है अर्ग, ERG, अर्ग। So ओके डन? no, sir, not yet. I will start it. कितना टाइम लगाते हो भाई? So we have to draw as well, right? हाँ, सुजल बाब, वेयर आर यू? So almost done. So CGS unit is अर्ग, spelling. ERG। Okay. So everything capital or small? कुछ भी लिख लो यार, उसमें क्या फर्क है? Okay. Done. ठीक है। ओके डन? तो ये हो गया वर्क करने के लिए, ठीक है? तो अगर किसी बॉडी के पास 50 जूल एनर्जी है तो कितना वर्क कर सकता है? हाँ, समृद्धि कोपकर। So I don't know. अभी तो बताया भाई, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। Yes, sir. किसी बॉडी के पास 50 जूल एनर्जी है तो कितना वर्क कर सकता है? So like work is equal to F into S, but किसी बैटरी के अंदर जितनी एनर्जी उतना ही तो वर्क कर सकता है वो। yes, sir. तो अगर 50 जूल की एनर्जी तो 50 जूल का ही वर्क कर सकता है ना वो। Yes, sir. आज तुम जितना खाओगे उसी के हिसाब से तुम काम कर सकते हो ना। ज्यादा खाओगे Yes, ज्यादा sir. काम कर सकते हो, तो केमिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, राइट? Yes, sir. ओके, डू दिस क्वेश्चन। ये बॉडी है 5 kg, ओके? इसके ऊपर हमने 20 न्यूटन का वर्क किया, ओके? एंड इट ट्रैवल्ड, सॉरी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड इट ट्रैवल्ड फॉर 10 मीटर्स। तो कितना वर्क डन हुआ? आशका शाह। अच्छा, ये पुराने क्वेश्चन का sir. आंसर दिया तुमने क्या? 50 जूल्स, ओके। हाँ, yes sir. सुजल बाग, अभी इसका क्यों 50 जूल्स होगा भाई? हाँ, बोलो ना। Sir, I did it wrong. Just a second. आर्यन राजेश, वेयर आर यू? Sir is not in the meet. So you're saying, sir, I have a problem with internet trying to rejoin. I mean, trying to join. अच्छा,
हाँ भाई सुजल बाग, वेयर आर यू सुजल बाग? हाँ कैसे कर रहे हो ये बताओ मेरे को सुजल, हाउ यू डूइंग इट, व्हाट इज द फॉर्मूला? So the formula is force into distance into cos theta. F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, फाइन। ओके अभी इसमें F कितना है, F is 20 Newton, S कितना है, 10 meters. कॉस थीटा कितना है इसमें, थीटा उसी डायरेक्शन में है ना? So 1, नहीं हाँ Sir, तो cos cos थीटा 0 इज 1, degree. थीटा इज 0, तो cos थीटा इज 1 हो गया, तो कितना हुआ 200 जूल्स, 200 joules. ठीक है? Hmm. ओके ऑलराइट, क्लियर एवरीवन? Yes. Okay. Next question. This is a body of 10 kgs. इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, और ये बॉडी t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे थी, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स तक उस पे कितना वर्क हुआ होगा? अब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, इसका एक्सेलरेशन पता चल जाएगा अगर, तो डिस्प्लेसमेंट भी पता चल जाएगा। यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है? चलो करो अब। Sir, I was actually kicked out from the meet for some like internet issues. Like, can you tell me what do you have to do? ये सवाल करना है, इससे पहले ये वाला सवाल किया, देखो कि यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा है 5 केजी के बॉक्स पे, और ये बॉक्स जो है 10 मीटर तक हमने उसको फोर्स लगाया, 10 मीटर तक। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि ये फोर्स थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट लगे रहना चाहिए, इट्स नॉट पहली बार लगा उसके बाद वो डिस्प्लेस हुआ, ऐसा नहीं। जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा उसके थ्रू आउट फोर्स लगा होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो गया इसका वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो 20 इंटू 10 इज 200 जूल्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने, 10 केजी का बॉक्स है, इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया हुआ है, टाइम इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल वेलोसिटी था 0, तो यहाँ पे था वो बॉडी, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो हमको फोर्स हमको वर्क डन निकालना, तो वर्क डन के लिए हमको फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो फोर्स तो हमको दिया है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, तो डिस्प्लेसमेंट तुम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हो, इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए, ठीक है? आर्यन Yes, sir. do it. Everybody remain on video, don't leave the video, I don't like it, I said it multiple times, be on video, if you're leaving the video ask my permission so that I know. समृद्धि कोपकर, समृद्धि समृद्धि कोपकर, are you there? Yes, sir. Yes, sir, just a minute. I'm facing some problems. एक्सेलरेशन कितना आया यहाँ पे पीपल? कितना आया एक्सेलरेशन, सब चैट पे बताओ मुझे, एक्सेलरेशन कितना है इसका? आशका करेक्ट,
समृद्धि करेक्ट. और एक्सेलरेशन बताना है, कितना टाइम है? Sir, what's the final velocity, sir? I can't. मैं पूछ रहा हूँ एक्सेलरेशन कितना है, तुम्हारा आंसर ही नहीं आया अभी तक. एक्सेलरेशन कितना है भाई? So, is final velocity given? यार स्वयं मैं पूछ रहा हूँ एक्सेलरेशन कितना है इस बॉडी का. कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन? V minus u upon 2t. No. Where else do you find the formula for acceleration? Force से related, mass से related. Force Oh, F Sir, F is equal to ma. हाँ, ma, yeah. F दिया M दिया तो A निकल आएगा. Oh, yeah. Okay. कितना है? So, one second, I'm finding. F है 20 और M है 10 तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये Yeah. एक्सप्रेशन हो गया. Sir, ये पता sir, है, U पता है, T पता है 5 सेकेंड, राइट. तुमको क्या निकालना है? S निकालना है. हमको तो S से मतलब है ना, F इंटू S चाहिए, तुमको S से मतलब है, राइट. तो कितना आएगा S? ut plus half at square. निकालो इससे कितना आएगा S. sir, I've got. क्या? No, sir. Also, I guess it's मैंने कैलकुलेट कर दिया, देख लो. wait. Oh, no, so I just gave the displacement. ठीक है, अब आगे भी करो. अब वर्क डन. Yeah, I'll do it. सुजल, वेयर आर यू? समृद्धि कोपकर, वेयर आर यू? आया सबको समझ में? समृद्धि कोपकर, वेयर आर यू? Yes, sir, I was just having some problems, so I couldn't hear your voice. Okay, where's your video? So I'm trying to open it, but when I open it, I'm not able to see your screen or hear you, so I switched it off. I'll try it again in some time if I'm able to open it or not. Were you able to do this question? Yes, sir. You got this answer? Yes, I got this answer. I was about to send you, but till at that time you finished that question. So ठीक है, fine. Do this. Everybody note this down. जिससे नहीं बना उसके बाद I'll give another question. So I'll tell it. हाँ, Done. done.
Done. चलो नेक्स्ट. ओके, क्वेश्चन. ये बॉडी है 5 kg की. इसके ऊपर हमने 30 न्यूटन्स का फोर्स लगाया. ओके, टाइम इक्वल्स टू 0. यहाँ पे u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड था. जब ये बॉडी पहुंच जाएगी एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, उसके ऊपर कितना वर्क डन हुआ होगा? वर्क डन कितना हुआ होगा ये तुमको निकाल. जब बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच जाएगी, तो मुझे सबसे पहले तो एक एक करके बताता हूँ, ठीक है. सबसे पहले तो तुमको बताना है, पार्ट ए है इस क्वेश्चन का, कि एक्सेलरेशन कितना है इस बॉडी पे. ठीक है. उसके बाद पार्ट बी तुमको निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है इस बॉडी का, ये एस. ठीक है. पार्ट सी निकालना है कि वर्क डन कितना. ठीक है, निकालो. आई विल गिव यू गाइस 3-4 minutes to do this. I'll be back.
So done. Come back, guys. Yes, sir. Okay, आंसर आया. पहले आंसर क्या आया? एक्सेलरेशन कितना आया? So 6 meter per second square. 6 meter per बाकियों ने आंसर दिया. I can see Swayam has given some answer. चलो, acceleration is 6 meter per second square. All right. Displacement कितना आया? 50 meter. सबका 50 आएगा. So मेरे को 3.99 meter आया. Yes, sir. I got 3.3. यार देखो, u equals to 0, v equals to 20, है ना? और ये क्या? a is equal to 6. Sir, I used the third equation. हाँ, v Yeah, square I v got square. plus 1.6. 2s. v square कितना है? 400 equals to 0 plus 2 into 6 into s, है ना? 12. तो 400 by 12 is equals to s. कैसा आया भाई स्वयं तुम्हारा? 50. हाँ, So I did a. Okay, it's a very silly mistake. what did you do? Sir, instead of multiplying 6 into 2, I did 6 plus 2 and I got 8. Anyway, चलो. So 33.33 meters आया, right? अभी फोर्स तुमको पता है, तो वर्क डन कितना होएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फोर्स कितना? 30 इंटू 33.33, राइट? कितना हो गया? हाँ, The 991. force is 30. Sir, I got 999. I took 33.3 instead of 33.33. हाँ, चलेगा. सो 999 है ना जूल्स, ठीक है? कूल. Yes, sir. तो ये आंसर आएगा. तो फिर बहुत लोगों का गलत गलत आया. समृद्धि कोपकर तुम्हारा 119 कहाँ से आया? So that was a typo. कैसे 19 तो हिट किया ना तुमने, फिर टाइपो कैसे हुआ? हाँ, So I was like writing the answer, so I didn't see it before sending it. So ओके. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ध्यान से So देखो what सब. was the work done? I didn't see it. एवरीवन बी ऑन वीडियो. Nine. आर्यन, राजेश. आर्यन, राजेश.
अभी वीडियो छोड़ के मत जाना बिना बताए, अदरवाइज आई विल टेक यू ऑफ द ग्रुप, ठीक है? ओके, लुक हियर नाउ पीपल, यहां पे अगर एक बॉडी है जिसका मास m है, इसके ऊपर हमने F फोर्स लगाया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, राइट? या चलो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, ठीक है? और थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी, अब ऑफ कोर्स इसके ऊपर वर्क करोगे तुम तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। तो अब इसकी वेलोसिटी होगी v, ठीक है? और ये डिस्प्लेसमेंट होएगा, है ना? राइट? तो इस पे वर्क डन कितना होएगा? इसके ऊपर वर्क डन विल बी इक्वल टू F into S. F इंटू एस, करेक्ट, राइट? अब ये जो S है और ये V, इनके बीच में क्या रिलेशन हमको पता हो सकता है? U V S और A के बीच का रिलेशन हमको पता है ना? दैट V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये सही रिलेशन है, राइट? ध्यान से देखो, इससे कुछ निकलेगा अभी, उसको फिर नोट भी करना तुम। अभी U स्क्वायर तो 0 है क्योंकि U 0, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, करेक्ट? A की वैल्यू क्या है? A इज इक्वल्स टू F बाय M, बिकॉज F इक्वल्स टू M है, राइट? हाँ, ओके। Yeah. So actually, I have a doubt to the previous question. Can I ask? बोलो। So actually, what I did, like, we got 400 by 12, right, as displacement. So I just took directly 30 into 400 by 12, and then I cancelled out. Is it? Yeah, that's not even a doubt. So I got 1000. So I got 1000 as the answer. ठीक है, ओके, चलो इधर देखो, V स्क्वायर इक्वल्स टू 2S हो गया। A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू F upon M. F अपॉन M, वेरी गुड, F अपॉन M इंटू S इक्वल्स टू V स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे S की वैल्यू चाहिए, तो S इज इक्वल्स टू MV स्क्वायर बाय 2F, राइट? S इज इक्वल्स टू M, उधर जाएगा MV स्क्वायर अपॉन ये 2F नीचे आएगा, ठीक है? अब ये S को इधर डाल देते हैं, तो W इज इक्वल्स टू F इंटू MV स्क्वायर बाय 2F। MV स्क्वायर अपॉन 2 FF कैंसिल हो गया तो क्या आया? W MV स्क्वायर अपॉन 2 MV स्क्वायर, ठीक है? तो मतलब जितना तुम वर्क करोगे, जितना वर्क किया है वो हाफ MV स्क्वायर के बराबर होगा। इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। What is kinetic energy? Kinetic energy is energy possessed in a body due to its velocity. तो जो वेलोसिटी है बॉडी के पास, उसके कारण जो उसके पास एनर्जी है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम किसी चीज पे, हमने इसके पास पहले कोई वेलोसिटी थी क्या? पहले कोई वेलोसिटी थी? नहीं थी, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं तो कोई एनर्जी नहीं। फिर हमने उसको एनर्जी दी, कैसे एनर्जी दी? उस पर वर्क करके एनर्जी दी। पहले इधर देख लो भाई, फिर मैं बोलूंगा तुमको नोट करने, तब नोट करना, अभी इंटरैक्ट। पहले इसके पास एनर्जी थी कि नहीं थी? बोलो। No, sir, पहले नहीं थी। नहीं थी। उसके बाद हमने उसको एनर्जी देने के लिए क्या किया? उसके ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स लगाया। वर्क किया। Work. फोर्स लगाने से एनर्जी नहीं मिल जाती, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा। अगर दीवार जो कि हिल नहीं रहा है, अगर कोई दीवार, राइट, उसको तुम पकड़ के खड़े उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वर्क डन 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है? तो हमने वर्क किया, वर्क करने से उसको एनर्जी मिली। किसको एनर्जी मिली? बॉडी को। तो एनर्जी मिलने के बाद उसका वेलोसिटी v हो गया, तो उसको कितनी एनर्जी मिली होगी? हाफ mv स्क्वायर की एनर्जी मिली, क्योंकि नाउ इट इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी इन दैट बॉडी। गेट इट? ये नोट कर लो, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ऐसे डिराइव कर। So there is any symbol for kinetic energy. ke। So do we have to write Ke is equals to yes half mv square? yes अच्छा then.
Yeah. हो गया? Yeah. No, sir, just a minute. हो गया? यार फिर वीडियो तो चले या तो Yes, sir. क्या भाई? ओके, आगे बढ़े। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? बोलो, स्वयं वैर कर। Half mv squared. होता क्या लेकिन? It's like that. I didn't understand the question. What is kinetic energy? So the force applied. Kinetic energy is energy. Oh, okay. That was the answer. What kind of pen is light energy? लाइट भी एनर्जी है ना? Yeah, साउंड एनर्जी है। yeah. हाँ, वेव्स में भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी, सब एनर्जी है ना। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है। अब वो किस लिए है? बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है तो उसके कारण जो एनर्जी उसके पास, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। समझे? उसका कितना फॉर्मूला क्या? हाफ mv स्क्वायर। सुजल वाग वेर आर यू? Yeah. सुजल वाग। So, what do we have to write as a definition? Kinetic energy is the energy possessed by a body due to its velocity. Possessed by A body due to its velocity. Thank you. ये एक बॉडी है जो 8 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? Sir, 20. हाँ, चैट में बताओ, चैट में। रॉन्ग। सुजल वाग रॉन्ग। करेक्ट। आशका शाह करेक्ट। समृद्धि रॉन्ग। सुजल करेक्ट। आर्यन राजेश, वेयर इज योर आंसर? ये सारे नोट्स तुमको अभी फोटो लेके सब लोग को भेजना मुझे एट द एंड ऑफ द क्लास, जो जो चीजें मैंने कराई। So you can directly save and share it. भाई मुझे आता है ये सब, मैं कह रहा हूँ आई नीड प्रूफ दैट यू हैव नोटेड इट डाउन। Oh, okay.
I am. आर्यन राजेश कम इन। कहाँ से 15 आया तुम्हारा, कैसे किया बताओ। Sir, so like kinetic energy is half into mass into v square. Oh, okay. So I made a mistake. क्या समृद्धि, क्या आंसर? Sir, I sent you. That is wrong, I told you na. I told you it's wrong, and then you smiled, but you never gave an answer. What did you do? How did you get 20? Sir, half mv. All right. And I'm telling you also it's wrong. Still you're not doing anything. स्वयंवर कर I करेक्ट, got it. यूनिट नहीं लिखा तुमने. Oh, sorry. अरुण राजेश करेक्ट. Samruddhi, again, I don't understand what mathematics you're applying. How is it 90? Tell me, what have you done? Half So mv half square. into m. Yes, sir. Half into 5 into 8. So then 2 ones and 2 fours are 8. And then it's square, so 4 into 4 is 16. And 16 5 is 90. बाद में स्क्वायर क्यों किया? हाँ हाँ, अभी हाफ mv स्क्वायर है ना, तो v कितना है? 8. तो 8 का स्क्वायर होएगा, राइट? या 4 का, बाद में कुछ काट वाट के कभी भी स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा. फिर क्या होएगा? हाफ इंटू 5 इंटू 8 स्क्वायर कितना होता है? 64. 64. फिर क्या होएगा? 32. 32. 5 2s are 10, 5 3s are 15. 15. तो अब ये हो जाएगा 16, 160 joules. This is your answer. हाँ, तो स्क्वायर लगा है पहले, बट यू आर कटिंग इट बाय 2. नॉट मेक सेंस. फिर से एक बॉल है जो ऐसे गिर रही है नीचे की तरफ, राइट? इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0. तो आफ्टर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो आफ्टर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, राइट? तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ. So, what is final velocity? I don't hear. हाँ, What is final velocity? वही तो निकालना है मेरे भाई. एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेशन होगा नीचे पता है तुमको? एक्सेलरेशन g होगा. g को 10 मीटर पर सेकंड 10 ले लो, 10 ले लो, ठीक है? कैलकुलेशन आसान होएगा तो 10 ले लो, मैं दे रहा हूँ 10. तो a पता है तुमको, t पता है तुमको, तो v पता चल जाएगा. Yeah. v पता चल जाएगा. और ये बॉडी का मास चाहिए. मास कितना है? मास है 5 kg. तो अब तुमको काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा. चलो सुजल वाघ, सुजल वाघ is not in the meet. Oh, I got this speed. I mean, a velocity. आगे निकालो फिर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा.
फाइनल वेलोसिटी कितनी आई? चैट पे लिखो। 440. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? चैट पे लिखो। Sorry, no. 100. Shut down. So आ गया आंसर? oh yeah, I also got the answer. ओके गुड। और किस किस का नहीं आया? सिर्फ 2 लोगों ने आंसर। Just typing. ओके 4000 जूल। गॉट इट? आया समझ में कैसे करना है इसको? ओके ओके ठीक है। अभी फ्लिपर पे इसको करोगे तो बेटर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये था काइनेटिक एनर्जी जो हमने अभी देखा। उसी तरह होता है एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? जब ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको हम लेके जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर एक बॉडी है ऐसी रखी हुई है m मास की, इसको ऊपर लेके अगर हमको जाना है तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर? Sir, could you repeat? ये बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर? More than the gravity's force. हाँ, कितना है ग्रेविटी का फोर्स? 9.8 meter per second. वो तो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स है mg, है ना? फोर्स नीचे mg की तरफ, mg लग रहा है इसमें नीचे की तरफ mg, तो हमको उसको ऊपर ले जाने के लिए mg फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है? और More than mg, right? हाँ, मोर देन mg लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर जीरो वेलोसिटी सॉरी जीरो एक्सेलरेशन से लेके आना है तो mg लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आना। ठीक है, राइट? क्योंकि ऊपर भी mg नीचे भी mg, नेट फोर्स जीरो होएगा तब जाके वो उसको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा ना। एनीवे mg फोर्स से हम ऊपर लेके गए और ये हाइट h हाइट तक लेके गए, तो वर्क डन कितना हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है h, तो कितना वर्क डन हुआ? mgh वर्क डन किया। और यहाँ पे हमने बॉडी को रख दिया अभी ऐसे पकड़े हुए, फिर छोड़ेंगे तो क्या होगा? उसमें ऑलरेडी एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? mgh, क्योंकि इतना वर्क डन हमने उसके ऊपर किया है। छोड़ेंगे तो फिर वो mgh वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी is equals to mgh, where h is the height. ठीक है? जहां से भी तुम नाप रहे हो तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा mgh। जैसे कि यहां से यहां तक का हाइट लिया, इसका मतलब इन दो जगह के बीच में mgh का एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है? आया समझ में? अभी देखो ये पेन को ऐसे उठा के ले गया, मैं अभी छोड़ूंगा तो क्या होएगा? वो भागा ना नीचे, उसके बाद वेलोसिटी आ गई उसके पास। इसका मतलब उसके में पहले से एनर्जी थी जो अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। गेट इट? नोट कर लिया सबने? हाँ पीपल? Yes, sir. Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट वाला पार्ट मैं अभी समझाने आ रहा हूं कि अगर ये बॉडी है मास m की, ये कहां पे है? कैपिटल H हाइट पे। ठीक है? कैपिटल H हाइट पे, और ये बॉडी को हमने गिराया, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। फिर सपोज ये बॉडी यहां पे आई, ये सिचुएशन 1 है, फिर ये सिचुएशन 2 है, यहां पे आई ये बॉडी। अब इसकी हाइट कितनी है? स्मॉल h हाइट पे आई। ओके? तो यहां पे इसका वेलोसिटी कुछ होगा कि नहीं होगा? हाँ Sir,
its velocity will increase, no? इंक्रीज, तो अभी v2 कुछ हो जाएगा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन 2 है। और यहाँ पे फिर इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे 0, क्योंकि ये जमीन को टच करने वाला है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v3 होगी, कुछ वो और ज्यादा होगी वेलोसिटी, है ना, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसके पास, 0. 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसके पास, mg into mg कैपिटल H, है ना, राइट, ओके, ऑल राइट। तो तो- इतना हमको पता है, हाँ बोलो। So can you just show the previous slide for 1 second? तुम यार पास्ट में क्यों चलते हो, प्रीवियस स्लाइड पहले पूछ लेना था आगे। So actually I was muted and I was speaking like, ओ, yeah, हो गया, so 1 second. नहीं हुआ। Excuse me, sir. क्या, So can I switch off my camera for a sec? I have to connect the charger. ओके So done. ओके, सुजल बाग, वेयर आर यू, सुजल, ओके। तो यहाँ पे इतना था, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे 0. 0 होगा। ये v3 निकाल सकते हो क्या, v3 की वैल्यू कितनी होगी, हाँ, so will it be 0 because height 0 नहीं होगी ना, h हाइट, कैपिटल h हाइट गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी निकाल सकते हैं ना हम। हमको एक्सेलरेशन पता है जो कि g है, डिस्प्लेसमेंट पता है कैपिटल h है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालना है, निकालो, बताओ कितनी होगी, v3 की वैल्यू कितनी होगी, So I didn't understand. How do we have to find out V3? भाई आफ्टर फॉलिंग कैपिटल h हाइट उसकी वेलोसिटी कितनी होगी निकालना है। Okay. एक्सेलरेशन इधर g है, तो g एक्सेलरेशन से गिरते हुए अगर h डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है। हम्म, So V3 would be 0, right? नहीं भाई, ग्राउंड हिट करने से जस्ट पहले कि बहुत बार मैं बता चुका हूँ, इट्स नॉट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, इट इज जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, व्हाट इज द वेलोसिटी, दैट्स व्हाट इट मींस, क्योंकि आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड तो ग्राउंड ने फोर्स लगा दिया जो कि तुमको पता नहीं कितना है। यही का है। कितना आया, और h हाइट गिरने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, किस किस से नहीं बन रहा है,
कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? Can't hear people. Tell me, Samruddhi, what are you doing? Tell me. So can we, to find v, can we use v square equals to u square plus 2as? Like Yes. So इसमें v की वैल्यू क्या है? v3 है. u की वैल्यू क्या है? 0, a की वैल्यू क्या है? 10. 10 नहीं है, g है, g. Oh, और s की वैल्यू क्या है? so that is height h. कैपिटल H. Yes, sir. बस v3 की वैल्यू आ जाएगी ना, जल्दी बता दो. Sir, is it हम्म. बोलो. बोलो क्या? What were you saying, Aryan? sir? I can't like I'm getting I don't know how to do this because I'm क्यों इतना डिफिकल्ट लग रहा है? ये अगर u था Sir, और ये Sir, h डिस्टेंस गिरने के बाद की वेलोसिटी v हो गई और ये Sir, हम- एक्सेलरेशन है g का, तो निकालो ना क्या फॉर्मूला. v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. हाँ बोलो. व्हाट आर यू सेइंग, आर्यन? Aryan, what are you saying? Tell me. is Aryan. Can you hear me, Aryan? Can't. Are you saying something? I can't hear you. Can't hear you, man. Can anyone else hear him? Nobody can hear you. Yes, sir. And he's on mute. Crazy. Anyway, कैसे नहीं बता रहे हो यार तुम लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सिर्फ सुजल ने कुछ भेजा है अभी तक. Ashka Shah, what happened? What is the value for V3? Sir, I think it will. I'm not getting a proper value. V square Will equals. be 2g and That's all 2g right. capital H. Yeah, that's okay. That's okay. U square plus 2as, right? तो हमको V3 square equals to 0 plus 2 into G into capital H ये होगा ना? So V3 square Yes, sir. is equals to 2GH, right? So V3 is equals to root of 2GH. यही होगा ना? Yes, sir. हाँ, V3 is equals to root of 2GH होगा ना? अभी काइनेटिक एनर्जी Yes, कितना sir. होगा यहाँ पे? हाफ m V3 स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू m इंटू V3 स्क्वायर कितना है? 2GH, राइट? 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? mg कैपिटल H. यू सी? तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. कितनी हुई टोटल एनर्जी? 0 प्लस mg कैपिटल H. तो कितना हो गया टोटल एनर्जी? mg mg कैपिटल. capital H. यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कितनी हुई? mg कैपिटल H. तो दो जगह तो टोटल एनर्जी सेम सेम आ रही है. अब ये बीच वाले में निकालते हैं V2 के लिए, राइट? तो V2 के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? समृद्धि कोपकर. So will it be 2gh? 2GH. पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होगा? हाँ, फॉर्मूला, टेल मी द फॉर्मूला. So for potential energy, it's mgh. तो यहाँ पे कितना हाइट इसका? Height is small h. तो फिर कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी? कितना होगा?
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? So mgh. इसका m कितना है? So m is m. g कितना है? G is g. g and h कितना है? Small h. तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भाई? Sir mgh. हाँ, mg स्मॉल h, क्योंकि यहाँ पे दूसरा h भी चल रहा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया. काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? So हाफ half into v2 mv स्क्वायर, square. हाफ m v2 स्क्वायर. अभी v2 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो v2 की वैल्यू भी इसी तरीके से निकालेंगे. कितना नीचे गिरा होगा अभी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h गिरा है, राइट? तो v2 की वैल्यू कितनी होगी? रूट ऑफ 2g. यहाँ पे h गिरा था तो यहाँ h आया था, लेकिन अपना यहाँ पे h तक नहीं गिरा है, h माइनस स्मॉल h गिरा. ये कितना डिस्टेंस है? ये h माइनस स्मॉल h है ना, इतना डिस्टेंस विल बी कैपिटल H माइनस स्मॉल h. ये डिस्टेंस होगा, राइट? करेक्ट. तो हम लिख सकते हैं हाफ m. अभी v2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h. 2 कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया? mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h. तो टोटल एनर्जी कितना होएगा? कैलकुलेट करके मुझे बताओ. mgh प्लस mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इसको टोटल करके बताओ मुझे कितना आएगा, ब्रैकेट खोल के. समृद्धि कोपकर, करेक्ट आंसर. व्हाट अबाउट अदर्स? बताओ. सुजल वाक, रॉन्ग. कैसे सुजल, कैसे ले आया ये आंसर? कैसे आया? Sir, I added kinetic energy and potential कितना energy. होएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी था mg स्मॉल h, राइट? Oh, okay. Yeah. प्लस काइनेटिक एनर्जी mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h. तो मतलब mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h, ऐसा आएगा ना. तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा mg कैपिटल H, राइट? एज यू कैन सी टोटल एनर्जी यहाँ पे भी mg कैपिटल H है, यहाँ पे भी mg कैपिटल H है, यहाँ पे भी mg कैपिटल H है. तो टोटल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, बट वहां सबसे ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी. बाद में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, राइट? तो एनर्जी सिर्फ चेंज हो गई इधर से उधर. गॉट इट? हो गया? डन? Yeah, but so I didn't understand it. Like, What? Which part? Which so like from the thing PE you have written in center, right? PE is equals to mgh. Like potential is equal to. From that, like that part I didn't understand. I mean. मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं. बोलो ना. Yeah. क्या बोल रहे हो? So I'm saying that I didn't understand the part where you have like where you are getting the total energy, like कौन से वाले? पहले कौन से सिचुएशन में? 1 2 की 3? so V2. V2 में. अभी कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है. ये No, the upper part, like ये वाला. yeah, यहाँ पे H माइनस H क्यों लिखा? ये yeah.
बिकॉज ये h माइनस h डिस्टेंस गिरा ना, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कैपिटल H है, ये डिस्टेंस स्मॉल h है, तो ये कितना डिस्टेंस गिरा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये डिस्प्लेसमेंट उसका। Oh, तो यहाँ okay, पे okay, sir. निकाला, Got it. जैसे तुमने यहाँ पे V2 निकाला था √2h, क्योंकि ये h डिस्टेंस गिरा था, तो अगर सिर्फ h माइनस h डिस्टेंस गिरा तो ये आएगा। Yeah, got it, got it. ओके करो। डन। अब ये नोट कर लो पूरा का पूरा, ये पूरा सिनारियो अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से समझ लो कि टोटल एनर्जी सेम रहती है, ठीक है। Sir, sir, could you repeat what you said because I was kicked out again. अब यार मैं कैसे रिपीट, कौन सा पार्ट रिपीट करूं, मेरे को कैसे पता चलेगा? So like the part where sir you are explaining V2 like mg, so that part. एक मिनट रुको। So like you asked like what is the like formula for V TF for, and so after that you were explaining something to sir. एक मिनट रुको। So I'll, can I go and come back in 2 minutes? ओके हाँ बोलो, which part did you not understand? हाँ बोलो आर्यन राजेश। So like the part where you're explaining V2, like you asked us to find what was mgh minus h. यार So वो बहुत what, पुराना हो गया, उसके बाद से तो मैंने कितनी सारी चीजें लिख दी यहाँ पे, इसको नोट तो करो पहले। V3 कैसे आया, समझ में आया तुमको? हाँ sir, like
तो V3 कब आया? जब कैपिटल H डिस्टेंस गिरेगा तो V3 आया। कितना आया? √2G कैपिटल H। तो अगर कैपिटल H माइनस स्मॉल h गिरेगा तो V2 इतना आएगा, क्योंकि कैपिटल H की जगह हमने कैपिटल H माइनस स्मॉल h लिख दिया। आया? So understood. That all I've understood. So like this part, sir. I mean, TF equal to you have after that. My internet it just kicked me out. भाई देख लो ना एक बार फिर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना? जितनी हाइट है, कितनी हाइट है? स्मॉल h हाइट है, तो mg स्मॉल h ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m v2 स्क्वायर। v2 की वैल्यू ये है, तो v2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाफ m 2g कैपिटल H माइनस h। तो ये लिख दिया। अब ये सब ओपन करने के बाद ये आया, करके देख लो, सामने लिखा तो है। Yes, sir. Note it down and understand what is written there. Everybody be on video. Don't go out of video. So done. ये सब नोट सबमिट करना आज तुमको, ठीक है? Yes, Done, sir. everyone? So I have written in pencil, like with pencil. So is it नहीं, okay? ठीक से लिखो, पेंसिल से नहीं। ठीक से नोट बनाओ ना यार। एनीवे बना लेना। ओके डन, आ गया सब कुछ समझ में? चलो लुक हियर, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करो, उससे थोड़ा क्लैरिटी आएगी। देयर इज अ बॉडी ऑफ 5 kg. How much work will we have to do to lift it by 20 meters? इसके लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा to lift it by 20 meters? बताओ। बताओ। So we have to take 10, right? Yeah, take GS10. Okay. So, Dilwag, where are got you? an answer. Sujal, So I Swayam अलग आंसर, आर्यन का अलग आंसर। Work done will be mgh is equals to m कितना है? 5, g is 10, h is 20, so 205,000 joules. 100 joules क्यों बोला भाई स्वयं वर्कर? so this calculation. Oh yeah. Yeah. हो गया? So are you playing on paper? Yes, checking it right now.
because I have to give it to you now. So abhi I checked, it's good. Done? Are you guys done? Yeah. Khatam. Yes, sir. Now final formula है power. Power is equals to work done upon time taken. तो जितना वर्क डन किया उसको करने के लिए कितना टाइम लगा, वो होता है पावर. तो अगर किसी के पास किसी ने अगर 50 जूल का काम किया लेकिन किसी ने कम टाइम में किया तो ज्यादा पावर है, किसी ने ज्यादा टाइम लेके किया तो कम पावर है उसके पास. ठीक है, दैट्स व्हाट पावर मींस. गेट इट? फॉर्मूला नोट कर लो. Yeah, so done. समृद्धि कोपकर. सब आर्यन राजेश. Yes, sir. I think like my internet is very bad. I can't. एक बॉडी के पास 100 जूल एनर्जी है, दूसरी बॉडी के पास 50 जूल एनर्जी, तो किसके पास ज्यादा पावर होगा? Sir, For the 100. 100 joule one. नहीं भाई, इससे कोई पता नहीं चल सकता ना हमको, क्योंकि हमको पता नहीं कि कितनी देर में वो काम करेगा. Yeah. समझ रहे हो? तो इससे हमको नहीं पता चल सकता. अगर 100 जूल वाला 1 सेकंड में 100 जूल डेसिपेट करता है तो उसके पास पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट. ठीक है, WATT वॉट. और 1000 वॉट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट. ठीक है, Okay. आ गया समझ में? तो जैसे बल्ब होता है ना 40 वॉट का, 60 वॉट का, इसका मतलब 60 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी रिलीज हो रही है उससे. ठीक है, Sir, I couldn't hear the part about 1000 watt equals. तो 1000 वॉट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट. क्योंकि कई बार पावर Okay, होता है ना, जैसे अपने पास एयर कंडीशनर होता है तो वो 1500 वॉट का होता है, 2000 वॉट का होता है कई बार, तो किलोवाट में उसको हम नापते हैं. ओके, So kilowatt, the W will be. let me complete it. So power is equals to what? Formula बोलो. Power is equals to Work done upon time taken. another way of saying it is rate of work done. Rate of work done is power. ठीक है, तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. तो अगर पावर, एक बल्ब है हमारे पास वो 40 वॉट का, इसका मतलब 40 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड उसमें यूज हो रही है. तो अगर हमको टोटल एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे? पावर इंटू टाइम कर देंगे. तो टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम टेकन. राइट, दिख रहा है इधर फॉर्मूले से? अब बताओ मुझे कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हमको? पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलेगा? Work done. Work done. और एनर्जी है ना, तो एनर्जी, तो दिस इज द यूनिट ऑफ, दिस इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी का यूनिट है, इसी यूनिट में हम बेचते हैं एनर्जी को. तो हमारे घर में जो एनर्जी आती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो इसमें कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में बिकती है. 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट कमर्शियल यूनिट. उसका मतलब कितना जूल? तो अभी निकालते हैं. तो 1 किलोवाट मतलब कितने वॉट भाई? बोलो 1000 वॉट. 1000 watt. गुड, 1000 वॉट इंटू 1 आवर. 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60. Sorry. 60. 3600 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है, तो वॉट और सेकेंड में हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऐसा यूनिट है. तो अब क्या करेंगे? वॉट इंटू सेकेंड गिव्स अस जूल. वॉट इंटू सेकेंड गिव्स अस जूल, तो ये जूल हो जाएगा. अब ये कितना हो गया? 36,000,000 है ना. 36 के बाद 5 जीरो हो रहे हैं, तो इसका मतलब 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल्स. ये हो गया 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. तो ये So why don't we say 36000000? तो बहुत लंबा हो जाता है ना. दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. तो जब बहुत सारे जीरोस होते हैं उसको 10 to the power करके हम दिखा देते हैं. So but both the answers are correct, right? हाँ, but that is very long to say.
this is easy to say, that's why 3.6 into 10 to the power 6 joules. ठीक है, ये एग्जाम में आएगा कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है. तो 1 किलोवाट आवर, kilowatt is the unit of power, but kilowatt into hour is not the unit of power, it is the unit of energy, क्योंकि उसको हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, क्लियर? ये सारे नोट्स अच्छे से लिख लेते हो. So you're gonna ask for notes, right? Yes, I'm going to ask for notes. Okay, cool. हो गया? नोट कर लिया? So no, 1 second. No. फटाफट फटाफट फटाफट. जल्दी. जल्दी जल्दी जल्दी. Yeah. Ready? Done. So 1 second. Yes, so done. ठीक है, अब अपना अपना पेपर निकालो. So, yeah. वर्क पावर एनर्जी करना है तुमको. So work, power, energy, where is it? Oh, work, energy and power. ठीक है, ये वर्क एनर्जी पावर दिख रहा है नीचे. Yeah, एवरीबॉडी क्लिक ऑन दैट. yeah. यू विल गेट वर्क एंड एनर्जी, है ना? Yeah. वर्क एंड एनर्जी को क्लिक करो, फिर ऊपर वर्क एंड एनर्जी दिख रहा है उसको क्लिक करो. हो गया? Yeah. पहला क्वेश्चन आ रहा होगा एसआई यूनिट वाला सबको. No. तो No, sir. it's- CGS unit of yeah. work. यूनिट वाला, हाँ वही वाला. तो उसको करो फटाफट सब. Done. सबका सही आया? Yeah. Sir. सीजीएस यूनिट आया सबका सही? Yes, sir. अर्ग है ना? It's ERG, right? Yeah. Yeah. Yes, sir. तो डबल कॉन्फिडेंस करके किया करो फिर. ठीक है, चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. तो पहले मार्क करने से पहले लेट्स जस्ट डिस्कस एवरीबॉडी. ठीक है, तो आशिका शाह ने आंसर दिया. ओके, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, गिर रहा है ऐसे, देन द टोटल एनर्जी, अभी हमने किया था टोटल एनर्जी क्या होता है. टोटल एनर्जी कितना होएगा? स्वयं वायरकर बढ़ेगा कम होएगा, क्या होएगा टोटल एनर्जी? So it would be mgh, right? हाँ, इट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट? यहाँ पे रिमेन्स हाँ, कांस्टेंट. डबल कॉन्फिडेंस के साथ हम करेंगे, ये सही है. गुड. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? बताओ स्वयं वायरकर. किलोवाट है क्या? So yeah. नहीं, वो पावर का यूनिट है ना. Sir, Oh, is yes. it Newton meter? So I think it's Meter is what? Force. Newton is force. Meter is displacement. Force into displacement is work. Work is energy, right? Joule is also energy. Kilowatt hour is also energy. But kilowatt is power. Unit of power, right? Okay, sir. Everybody. The work done. अब खुद से करो सब लोग. अपना अपना जो आंसर आ रहा है वो खुद से करो. The work done of an object does not depend upon the. खुद से करो. So this is so simple. हाँ, बताओ स्वयं क्या आंसर है? So it's the initial velocity. Very good, because it depends on force, it depends on displacement, it depends upon the angle, right? Fs cos theta, but it does not depend upon the initial velocity. Double confidence. And next, good, correct answer स्वयं. Next question. अब ये solve करना है तुम लोग को. चलो solve करो. A girl is carrying a school bag of 3 kg mass on her back
and moves 200 meter on a level road, the work done against the gravitational force will be. Oh, Solve. Everyone be on video. गलत कर दिया आज का. so I also did it नहीं किया. wrong. सर मैंने आंसर ही नहीं दिया अभी क्यों? तक। जल्दी दो ना. So I did it wrong. क्यों भाई? A girl is carrying a school bag. चलो मैं नोटेट करके यहीं दिखा देता हूँ कैसे होएगा इसका. किधर है नोटेट? Sir, how is it 0? Sir, I am not. Girl is carrying a school bag on her back and moves 200 on level. The work done against the gravitational force कैसा है? Perpendicular है. उसका movement कैसा है? इस तरफ है. Right? तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर है और उसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में. तो 90 डिग्री हो गया. तो वर्क डन कितना हुआ फिर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स? 0 हुआ ना. 0. तो दैट्स योर आंसर. Okay, sir. आया समझ में? हाँ, yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज मैक्सिमम. अब बॉब क्या होता है? वो जो ऐसे ऐसे होता रहता है ना, पेंडुलम ऐसे हिलता रहता है. ये The ball. पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होएगा? Sir, in the edge. हाँ, तो वो Like- एक्सट्रीम पोजीशन हुआ ना. एट द एक्सट्रीम पोजीशन. Extreme. गुड. स्ट्रीक मिल गया मेरे को. तुम लोग को भी मिला क्या? Water store. Yeah. नहीं, तुम लोग को गलत हुआ ना, तो तुमको नहीं. Water stored in a dam possesses. So what? So dam means the water thing, right? हाँ, डैम The kinetic energy. है ना. नहीं, उसमें मूव थोड़ी कर रहा है, वो तो स्टोर्ड है वहां पे. तो इट हैज व्हाट? इट हैज No पोटेंशियल. energy. हाइट बढ़ती जाता है ना. Potential. तो पानी को हाँ. गिराओगे तब जाके वो काइनेटिक में कन्वर्ट होएगा. वो काइनेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होएगा. ठीक है. एक्चुअली मैं इसको शेयर नहीं करता. मैं शेयर करने से क्या हो रहा है कि तुम लोग फिर मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ ना आंसर. So we are getting the correct answer. हाँ, तो अब तुम लोग खुद से करो. एंड आई विल सी. अभी मैं तुमको 5 मिनट दे रहा हूँ. 5 बजे तक कौन सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करता है, फटाफट चलो. उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगी क्लास, तो घर में खुद से करना. तब जाके तुम्हारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग होंगे. चलो करो अभी. मैं देखता हूँ किसके कितने कितने पॉइंट्स बढ़ते हैं. Excuse me, sir. Can Bolo. you tell me what you are doing? यार, फ्लिपर टेक आउट फ्लिपर. अपने इंटरनेट का कुछ करो तुम लोग. यू कांट जस्ट गो ऑफ फॉर 10 मिनट्स एंड देन एक्सपेक्ट मी टू रिपीट एवरीथिंग ना. क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें पढ़ाई है. अभी मैं ऐसे बता दूंगा तो भी नहीं हो पाएगा. फ्लिपर वर्क एनर्जी पावर खोलो उसको. Sir, this will be shared in the like this video will be there in the YouTube, right, sir? Yes. I'll put it. सुजल 687 पे चल रहा है, आज का 271 पे चल. तो काफी पीछे ही हो यार तुम लोग. बाकी ग्रेड्स में 21,000 22,000 ग्रेड 10th में स्कोर्स हो गए. Sir, for me 687 पे पहुंचा और फिर कुछ था ही नहीं करने के लिए. अब डाल दिया ना, अब कर लेना. हाँ. और वैसे भी अभी तुम लोग का ये टर्म 2 है ना, उन लोग का तो टर्म 1 का पूरा मिला जुला. So that's okay. We'll put infinite questions. That way you can keep doing it. आज का वाइज योर. अच्छा, तुम्हारा वो दूसरा अकाउंट है. समृद्धि, यू आर एक्सट्रीमली पीछे. कभी किया ही नहीं है शायद तुमने इसको. So no, I started it, but then suddenly my mother's phone got hanged, so we had to restart the phone. So everything got deleted, and I had to make the account again. So Why do you have to make the account again? वो अकाउंट तो stored है ना. Deleted हो गया कोई बात नहीं. उसी अकाउंट से तुम वापस लॉगिन कर सकते हो. so I tried, but it was showing not allowed and something like that. So Nothing I like had to that. make So a you new should one. ask us.
क्योंकि ये सारी चीजें क्लाउड में स्टोर हो रही है, तुम्हारे फोन में नहीं स्टोर हो रही। तुम्हारा फोन टूट जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, यू कैन जस्ट एक्सेस इट फ्रॉम अदर। अभी वेब में भी आ जाएगा ये। चलो So Once- once like चलो subscribe करो, बताओ। I forgot my password as well for the Flipper thing. पासवर्ड तो है ही नहीं इसमें भाई, पिन है वो, पिन। No, like yeah, तो अपना वो that thing. डेट ऑफ बर्थ डाल के तुम रीसेट कर सकते हो पिन को, एडिट का बटन डालो, है ना उधर। Yeah, I got it. I got it. ओके Like I remembered afterwards. सुजल का पॉइंट बड़ा, आज का व्यूअर्स एट द सेम पॉइंट ओनली। चलो करो। Done. खत्म हो गया पूरा? अच्छा awesome। नहीं जल्दी खत्म हो गया, कितने क्वेश्चन? हाँ तुम्हारा 905 स्कोर हो गया। गुड गुड गुड। तो जो गलत किया उसको सही कर लो। So that is what I'm doing. हाँ अभी आई कैन सी दैट 70% ही हुआ वो बूस्ट। अभी बूस्ट पे जाके सब सही करो। Sir, I've got sound also. Should I do sound? नहीं नहीं अभी नहीं, साउंड नहीं करना, अभी वर्क पार एनर्जी करना है। Sir, I've done. तो जो गलत किया वो बूस्ट पे जाके सही करो ना। Okay. ठीक है, ऑल राइट, फिनिश दिस एंड देन सेंड मी द नोट्स। 5:15 तक का टाइम दे रहा हूँ, अच्छे से नोट्स बना लो अच्छे से, और ग्रुप पे भेजना, मुझे पर्सनली मत भेजना, ग्रुप पे पीडीएफ स्कैन करके भेजना, ठीक है? वर्क पार एनर्जी के नोट्स। चलो ऑल राइट गाइस, हैव फन, बाय बाय। और फिर वर्कबुक के भी क्वेश्चन चालू कर लो करने के लिए। और तुम लोगों को ग्रेविटेशन वगैरह नहीं आता, so please do it on Flipper and then go to workbook and do it there also. Okay, bye. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye.